Hello students, we are starting with differentiation today, and in today's lecture we'll be studying about composite function and the differentiation of the composite function. We'll take a revision of whatever was done in the 11th standard and then we'll continue with the composite function. So let's see what all things we have studied last year. Now last year we have seen some formulas. These are the formulas that we have seen last year. Let's revise the formula. So here we are given the function. The function is y is equal to fx and the derivative is taken as dy by dx is equal to f dash of x. So first formula is derivative of a constant is 0. So whatever is the constant, it can be a number, it can be a alphabet, then the derivative of that constant will be 0. Next, derivative of x with respect to x, if you are finding the derivative, then the value is equal to 1. Then derivative of root x is equal to 1 upon 2 root of x. Derivative of 1 upon x is equal to minus 1 divided by x square. Next is derivative of x raised to n is equal to n times x raised to n minus 1. Derivative of a raised to x is equal to a raised to x into log of a. Derivative of e raised to x is equal to e raised to x, and derivative of log x is equal to 1 upon x. These are the formulas that we have done last year. We have also learned some rules of differentiation. So let's look at what are the rules of differentiation. So if you are having two functions, say if u and v are differentiable function of x, and if you are given that y is equal to u plus v, then we can say that dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. So this one tells us that differentiation is distributive over addition. It is also distributive over subtraction, so that you get y is equal to u minus v. Then you can say dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. Next is application of differentiation on multiplication. So suppose you are having u and v are two differentiable functions of x, and we have y is equal to u into v. Then dy by dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. So this is an important formula that we have seen last year. Then we have u upon v formula, that is if you are given y is equal to u upon v, then so if you are given y is equal to u upon v, then we can say dy by dx is equal to v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. V should not be equal to 0. So, and the last one is if you are given y is equal to k multiplied by u, k is a constant over here, so then you get dy by dx is equal to k times du by dx. Now let's revise taking few examples, all the formulas over here. Now suppose let us take the formula. We are just looking using the formula derivative of x raised to n. Okay, so derivative of x raised to n is n times x raised to n minus 1. We know this is the formula. So if you are given that derivative of say x raised to 7 we want to find out. So derivative of x raised to 7 will be the value of n over here is 7. So we'll put the value in the formula as n is equal to 7. So that will give us 7 times x raised to 7 minus 1 is 6. Now suppose here the function is given as say
2 times x raised to 7 and you want to find out what is the derivative of this term. तो 2 is a constant term. See, k is a constant over here. ये ऐसा हो गया. तो हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. So that value is equal to 14 times x raised to c. So अगर स्केलर हमारे पास है, हम स्केलर को वैसे ही रखेंगे और जहां पे भी x टर्म रहेगा उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज हाउ द फर्स्ट फॉर्मूला वर्क्स. अगर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ओनली 2, इसके बाजू में कोई x नहीं है, देन वी कैन से द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 अभी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. दैट इज अवर first formula that we have seen. Now suppose you want to find out what is derivative of e raised to x. तो e raised to x का derivative e raised to x ही रहेगा. There will be no change over here. Then if you are having derivative of a raised to x, अब a raised to x का derivative e raised to x के जैसे ही होता है, but since there is a over here, तो फॉर्मूला हमारा वर्क करता है वो होता है a raised to x मल्टीप्लाई बाय दिस इज log of a. एक्चुअली ये दोनों है वैसे ही. अगर आप a के जगह पे e डाल दोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है log of e और हमें पता है log of e का वैल्यू हो जाता है 1 एंड दैट इज व्हाई यू गेट डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज इक्वल टू e raised to x. So the formula is this only that is working over here, but normally we'll be using it as a formula. We'll not use this concept for that one. Now let's look at few more example. Suppose you are given that y is a function of x और y का वैल्यू दिया है 2x स्क्वायर प्लस x. अब हमें डिफरेंशिएशन करना है. इन दोनों के बीच में प्लस साइन है तो डिफरेंशिएशन हाउ इट विल वर्क, इट विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x स्क्वायर, एड इट टू द डेरिवेटिव ऑफ x. सो दैट वैल्यू इज नथिंग बट 2 स्केलर है तो वैसे ही रहेगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x प्लस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाता है 1 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 4x प्लस 1. सो ये हो गया अगर एडिशन है तो. नाउ सपोज इन प्लेस ऑफ एडिशन यू आर गिवन अ सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस x. तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं. 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव एक तो ऐसे आप निकाल सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप ये वाले कांस्टेंट को ये वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई द 2 नंबर्स. सो 2 into 2 is 4, x raised to x का पावर जो भी रहेगा वो 1 से कम हो जाएगा. सो दैट इज 2 minus 1 is 1. माइनस यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया. x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड दैट वैल्यू इज 4x minus 1. और ये हो गया हमारा सम. Now let's take a sum on multiplication. So suppose we want to find the derivative of x into this is say log of x. अब x एक फंक्शन है algebraic, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो अब हम अप्लाई करने वाले हैं u इंटू वी रूल. सो u इंटू वी रूल जब मल्टीप्लीकेशन में होता है आप किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो. आप इसको u लो, इसको v लो या फिर आप इसको v लो या फिर इसको u लो. इट डिपेंड्स अपॉन you व्हाट यू वांट टू टेक. सो नाउ लेट्स टेक x एज अ u फंक्शन. तो फॉर्मूला के अंदर हम u और v का वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हियर वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज u एंड दिस वैल्यू इज v. तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा u इंटू दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ v. v का वैल्यू है log ऑफ x प्लस अब log ऑफ x वैसे ही रहेगा v इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u का वैल्यू है x. सो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव. यहाँ पे u का वैल्यू x होना चाहिए. आई विल पुट द वैल्यू एज x. सो x एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ log x फॉर्मूला के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ log x हमारे पास है यहाँ पे. सो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. विल जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर. ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x
प्लस यहाँ का log x वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू x गेट कैंसल, द वैल्यू इज 1 प्लस log ऑफ x इंटू 1 इज इक्वल टू log ऑफ x. तो ये हो गया u इंटू v रूल. अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम u अपॉन v यूज करके देखते हैं कैसा यूज होता है. सो लेट्स टेक अ u अपॉन v रूल. Let me take the function as say you want to find out the derivative of log of x divided by x. इसी फंक्शन को लिया है ऐसे. अब जब हम u अपॉन v रूल करते हैं, द न्यूमरेटर इज ऑलवेज u. न्यूमरेटर हमेशा u रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा v रहेगा. सो फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करते हैं, इफ यू पुट इट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा? The formula is u upon v is equal, derivative of u upon v is equal to v times derivative of u minus u times derivative of v divided by v square. So apply करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है v का वैल्यू है x, तो ये x वैसे ही रहेगा, x multiply by this is derivative of log of x minus log of x वैसे ही रहेगा into this is derivative of x whole upon x square, that is v square. अब हमारे पास जिसके भी आगे d बाई डी एक्स दिखेगा उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है. तो यहाँ पे हमें log x का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकालना है. सो लेट्स फाइंड आउट दीज टू डेरिवेटिव. सो x रिमेन्स एज इट इज. log ऑफ x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज 1 अपॉन x माइनस ये log ऑफ x वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 डिवाइड बाय दिस इज x स्क्वायर. कैंसिलेशन कर देते हैं x का, तो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस log ऑफ x डिवाइड बाय x स्क्वायर. तो ये हो गया u अपॉन v कैसे यूज करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. Now we'll start with composite function derivative. अब हम देखते हैं composite function derivative. Now there are few rules that we are going to use. The first rule, or you can say actually it is a theorem. This is, if you are given y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x, then we can say that dy by dx is equal to dy by du into du by dx. इसको हम बोलते हैं चेन रूल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर. सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया है y, लेकिन y कैसा है? y फंक्शन ऑफ u है. जैसे कि अगर हम लेते हैं log फंक्शन, ओके, लेकिन ये log किसका है? तो u का है. अब ये u क्या है? तो u का वैल्यू सपोज हमारे पास है 2x प्लस 5. तो एक्चुअल में हमें दिया है y इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ 2x प्लस 5. अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाले टर्म का डेरिवेटिव. log x का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अब ये क्या हो गया है? log ऑफ फंक्शन ऑफ x. तो u हमारा फंक्शन ऑफ x है, तो उसके लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं. अब ये रूल कैसे अप्लाई होता है? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स डिफरेंशिएट द टर्म. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम ये log का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5. नाउ लेट्स लुक व्हाट हैपेंस ओवर हियर. अब हमारे पास है, since we are given the value of y is equal to log of u. अब ये u में है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u. तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू u तो हमें मिलता है dy बाई du इज इक्वल टू log ऑफ, वहां पे x था तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया 1 अपॉन x. तो यहाँ पे अगर log u है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u. ओके, अब हमारे पास है u का वैल्यू. u का वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 5. अब ये फंक्शन हमारा x में है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलता है du बाई dx. और du बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x है,
तो 2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, फाई कांस्टेंट है, फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमें मिला du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स। यहाँ पे हमें मिला dy बाई डी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये चेन रूल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और यहाँ से, एज वी पुट द वैल्यू ये हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है 2, लेकिन हमारा क्वेश्चन x में दिया था तो हम क्या करेंगे, हम u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। u का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 5 है, इधर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 दिस इज 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5, और ये हो गया हमारा dy बाय dx। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द चेन रूल वर्क्स। अब चेन रूल हमेशा क्या करता है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का ये डेरिवेटिव निकालता है। अब अगर हम ये प्रोसीजर देखें, u कंसिडर करेंगे y को और u हमारा x में है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। सो रादर देन डूइंग दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू जस्ट मॉडिफाई आवर फ्यू फॉर्मूलेज। हमारे जो फॉर्मूले हैं इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेट्स लुक एट द फॉर्मूलेज। अगर हमारे पास है रूट ऑफ x, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट x हो जाता है, ये फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ x। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, हम क्या करेंगे, x के जगह पे डालते हैं फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, रिप्लेस किया, x के जगह पे हमने डाल दिया f ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव और 1/2 रूट x है, तो बाहर वाला फंक्शन तो रूट ही है ना, तो रूट का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे रूट के अंदर जो भी है वो वैसे का वैसा रहेगा, जो कि है हमारे पास रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या चाहिए है, ये हमारा फंक्शन है u, तो u का डेरिवेटिव मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स को हम नॉर्मली लिखते हैं, दिस वैल्यू इज कैन बी रिटर्न एज दिस इज 1/2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम क्या डालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स। तो अब अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ रूट एक्स है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है हम 5th नंबर फॉर्मूला के लिए पहले देख रहे हैं। सो अगर आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस 1, तो हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेज टू n। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेज टू n हो जाएगा n टाइम्स, अब बाहर वाला फंक्शन जो है वो है ये ब्रैकेट का पावर, दैट इज n, सो n टाइम्स ये हो जाएगा f ऑफ x रेज टू दिस इज n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है fx, और अभी हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ fx के लिए हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। तो अगर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ fx रेज टू n, देन विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज n टाइम्स f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू f डैश ऑफ x। उसी तरह से अगर आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज टू n, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस n डिवाइड बाय x रेज टू n प्लस 1। ये वाले फॉर्मूला में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये वर्क करता है। नाउ जहां पे भी x दिखेगा x को हम बदल देंगे f ऑफ x से, तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ x रेज टू n is equal to minus of n divided by this is f of x
रेज टू दिस इज n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हो जाता है एफ डैश ऑफ एक्स. सो वी आर जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूलेस. वैसे ही अगर हमारे पास है ए रेज टू एक्स, तो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. लेकिन अगर हमने एक्स को अभी चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा ए रेज टू एफ एक्स. दैट डेरिवेटिव इज ए रेज टू एफ ऑफ एक्स into this is log of a multiply by function का derivative that is f dash of x. That is, this formula is changed in this way. Let's look at the next one. Now suppose you already know the derivative of e raised to x. So e raised to x का derivative होता है e raised to x. तो अगर हमने x को रिप्लेस किया फंक्शन ऑफ x से तो ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ एक्स. हो जाएगा ई रेज टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स. लेट्स लुक एट द लास्ट फॉर्मूला ओवर हियर. लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो जाता है 1 अपॉन एक्स. तो अगर हमने x को रिप्लेस किया एफ एक्स से तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स. सो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वॉट एवर टर्म इज ओवर हियर. तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स. सो वेन एवर यू सी अ फंक्शन इज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एक्स then we are going to use these formulas. ये वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे. so easily we'll get the answer rather than going for applying u and v. अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते, अभी हमने लिया था एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 5. तो हमने क्या किया, पहले 2x प्लस 5 को u ले लिया यहाँ पे, राइट. वी हैव टेकन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू u. दिस इज लॉग ऑफ u. फिर डिफरेंशिएट किया, फॉर्मूला के अंदर पुट किया. लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा हमारे पास फॉर्मूला चेंज कर लिया हम लोग ने, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे यहाँ पे. तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है डायरेक्टली डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, अब log ऑफ एफ एक्स जैसा हो गया ये. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. log बाहर वाला फंक्शन है तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन द फंक्शन दैट इज 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5. अब हमें 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव चाहिए, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाता है, let me write down this function as it is. so this is 1 upon 2x plus 5. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाता है 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव हो गया 0. so that value is equal to 2 divided by this is 2x plus 5. now that gives the answer. अब प्रीवियसली भी हमने यही सम किया था, लेकिन हमने u और x y को u कंसिडर किया था, u को x में कंसिडर किया था और इसको सॉल्व किया था. now if you apply the formula easily you will get the answer rather than applying this whole procedure. ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने को आपको काफी टाइम लगता है. if you know the formula it is much easier. I hope you have understood this part of the lesson. नाउ ये जो हमने अभी अप्लाई किया है चेन रूल, चेन रूल कैन बी अप्लाइड फॉर मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस. जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ e रेज टू 2x प्लस 7. अगर ऐसा फंक्शन दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक फंक्शन लॉगरिथमिक है, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे है हमारा 2x प्लस 7. सो इट इज पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर ये वाले फंक्शन का, फिर आएगा इसका डेरिवेटिव. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. सो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x,
ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स। अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट जो हमारा है वो है एफ ऑफ एक्स, सो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज ई रेज टू 2x प्लस 7 इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स पूरा ब्रैकेट लिया था हम लोग ने, तो ये हो जाएगा ई रेज टू 2x प्लस 7। अब अगर हम इसको देखें, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, अब यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाता है ई रेज टू एफ एक्स, एक्स को छोड़ के एक्स के साथ कुछ भी आ गया, जैसे कि 2x आ गया, x प्लस 7 आ गया, या फिर और कुछ भी आ गया, देन इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, सो इट इज ई रेज टू एफ एक्स। सो ई रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स। So now we'll apply this formula over here. As we apply the formula, let's see what happens. तो ये पहला वाला टर्म वैसे ही रहेगा जो है 1 अपॉन ई रेज टू दिस इज 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा ई रेज टू 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 7। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। So now here this is a common term, will cancel the term, बचा हमारे पास है this is 1। अब 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाता है 2, 7 का डेरिवेटिव 0, और ये हो गया हमारा आंसर। सो इजीली यू विल गेट द आंसर। नाउ आई हैव टेकन अ sum which looks complicated but it is not actually complicated. We'll look at this sum later on when you will understand what we have done over here. अब लॉगरिथमिक रूल्स हमने देखे नहीं है, we'll look at the logarithmic rules and that will give you this value is very simple and the answer you will get it just in one step. But I hope you have understood ये जो हमारा चेन रूल है वो मोर देन 2 फंक्शंस के लिए भी वर्क करता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। सो हियर दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ दैट। If you are given y is a differentiable function of u1, ui it should be, where ui is a differentiable function of ui plus 1 for I is equal to 1, 2, 3, 4 up to it is n minus 1, and un is a differentiable function of x, then you can say dy by dx is equal to dy by du1 into this is du1 divided by du2 into this is du2 divided by du3 and so on. So that is how it works. So students will stop over here for the day. Next class we'll be seeing the examples based on the composite rule. So we'll stop over here. Have a nice day and thank you.